السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، عزیز بیٹوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گزارش یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت لادینیت اور افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا وجود جو ہے نا، ہم نے اپنا آپ ہم کیا ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہے ہمیں سے بہت دور ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پتہ ہے تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزار کے جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں بھیجا، تجھے میں نے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، میں نے تجھے چہرہ خوبصورت دیا، پیاری شکل دی، تو ہاتھ دے، 2 پاؤں دے، تو دیکھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، عیش کرتا تھا۔ میں نے جس مقصد کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا اس میں سے کوئی کام جو کیا ہے وہ مجھے بتا۔ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ ساری عمر کھانے پکانے پینے عیش اڑانے میں گزار دی۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ مجرم بن جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ محترم ناظرین کرام، ارادہ یہی ہے کہ چند منٹ کی مختصر سی گفتگو آپ سے ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے، خصوصاً ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک گھر کو لگائیں، گھر کی اگر 10 افراد ہیں، ان کا ایک سربراہ ہے، والد ہے، والدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ والد اور والدہ اپنے بچوں میں انصاف نہیں کر رہے۔ جس بیٹے سے محبت زیادہ ہے اس کو زیادہ نواز رہے ہیں، جس بیٹی کو زیادہ ہے اس کو زیادہ پڑھا رہے ہیں، یعنی بچوں کے درمیان میں والدین تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں نا، بچے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دکان میری ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے، وہ کہتا ہے یہ جگہ میری ہے۔ انصاف کسی کے اندر نہیں ہے، اور والدین بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایسے انداز سے بچوں کے اندر یہ معاملات تقسیم کر دیں کہ بچوں کو نہ ہمارے اوپر اعتراض ہو، نہ آپس میں کسی اوپر اعتراض ہو۔ ایسا طریقہ جو ہے منصفانہ لایا جائے۔ جب ایک گھر ہے 10-15 افراد کا، ان میں ہی بدامنی ہے، تو اس سے پھر دوسرا گھر بھی وہ بھی ایسا ہے، تیسرا گھر، پورا محلہ ایسا ہے، سکون کہاں سے آئے گا؟ اور میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے، کوئی بندہ دوسرے بھائی کو ترجیح اور اثار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی، اور وہ کون تھے صحابہ کرام؟ جس طرح آپ یہ واقعہ سنتے آتے ہیں، یہ ایک جنگ میں زخمی ہوئے، ایک زخمی نے کہا مجھے پانی دو، اس کے پاس پانی لایا گیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ دوسری طرف سے آواز آئی مجھے پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو دو۔ جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی لو۔ تیسری طرف آواز آئی مجھے پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو، اس کو دو۔ جب وہ تیسرے کے پاس گئے تو وہ جناب شہید ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرے کے پاس گیا وہ بھی، تینوں شہید ہو گئے۔ گلاس ایک ہے، پانی کسی نے پیا، کیا ہے؟ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارا رزق، سارے پھل، سارا اناج، سارا گندم، ساری چینی ہمارے گھر میں جمع ہو جائے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ہمسائے کے گھر میں بھی آج رات کا آٹا ہے یا نہیں؟ سردیوں کا سیزن شروع ہے، ہم نے اپنے بچوں کو جناب کوٹھی، جرسی، ہر شے مکمل دے کر بڑے خوش ہیں، جناب ہمارے بچے سردیوں میں عیش کریں گے، جناب ان کو سردی نہیں لگے گی۔ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا سامنے والا ہمارا ہمسایہ، اس کا کاروبار نہیں ہے، ان کے بچے وہ پلاسٹک لیلن کی جوتی کے ساتھ جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر جناب یعنی سردی کی وجہ سے کھرینڈ آئے ہوئے ہیں،
उनके पास तो सरसों का तेल भी नहीं है जो पाँव पर लगा लें धोकर, साबुन भी नहीं है रोज़ाना धोकर पैर साफ करके लगा लें। वो प्लास्टिक की जूती में आगे पीछे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि उनके बच्चों के शूज़ नहीं है, मैं यार इस बार उनको यानी शूज़ ले दूँ। आपके दाएं वाले हैं घर वाले, उनके गर्मियों वाले कपड़े हैं, वो गर्मियों वाले कपड़ों में बाहर निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए हाथ ऐसे बांधे होते हैं, सर्दी की वजह से कांप रहे होते हैं। कभी आपके दिल में तरस आया कि इनको लिबास में लेकर दूं? ये इनके साथ भी मेरा दीनी रिश्ता है। और ये तो हमसायों की बात है ना। आगे चलो, अगर एक भाई अमीर है, उसको ये एहसास नहीं है कि मेरे दूसरे भाई जिनका कारोबार नहीं, पता नहीं वो मेरे भतीजे भतीजियाँ, वो मेरी भाभी, उन्होंने सर्दियों के कपड़े लिए या नहीं, मैं पता करूं। अंदाज़ा होता है कि मेरे भाई की इतनी कमाई है, उससे तो घर का खाना पीना पूरा नहीं होता, वो सर्दियों के कपड़े कहाँ बच्चों से लेकर देगा। आपका हक बनता है आप हर बच्चे के 2-2 सूट लें और जाकर कहें कि ये सूट लें, ये इसकी सिलाई के पैसे, ये जूतों के पैसे, आप मर्जी से जूते लें। वो जब लेंगे सारा कुछ कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे वालिद साहब का अगर कारोबार नहीं तो हमारे चाचा जान का तो है ना, वो तो हमें सब कुछ दे गए ना। कोई आप फजा तो पैदा करें मोहब्बत वाली। अगर कोई भाई है, उसकी बहन है, तो उसके ज़रा शोहर के हालात ख़राब हैं, हम ताना देते हैं बहन को कि तुम्हारे घर क्या है, खाने के लिए नहीं है। हमने कभी ये सोचा कि ये हमारी बहन है, वो हमारा बहनोई है? कोई बात नहीं है, कारोबार कभी नहीं होता। सर्दियों के दिन है, आप जाएं सब बच्चों को जनाब कोटियाँ लेकर दें, जराबा लेकर दें, हैं उनको गर्म शाले लेकर दें। आप वापस आएंगे, बच्चे कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे अबू का इस वक्त कारोबार नहीं तो हमारे मामू हमें सब कुछ ले। और कोई बहनों का ख्याल तो रखें। यही बहनें आपको दुआएं देंगी जब इनको आप कुछ मोहब्बत दिखाएंगे। लेकिन आजकल तो बहनों का जो हक है, हक वरासत जो अल्लाह ने उनको दिया माँ बाप की तरफ से, वो भी उनको नहीं देते। भाइयों की कोशिश होती है हड़प कर जाए, ऐसे हीले बहाने लगाते हैं। अगर कोई बहन ले लेती है, मांग लेती है, तो उसको देने के बाद उससे लातलकी कर देते, उससे मुलाकात ही नहीं करते। कैसे मुसलमान हैं हम? मेरे भाइयों, ये छोट चंद गुजारिशात के हमारे माशी मसाइलात, हमारे जो है घरों के आयली जो मसाइल हैं, वो आपके सामने है कि हम मुखलिस ही नहीं है अपने आप के साथ। कैसे हम मुसलमान हैं? सिर्फ जुबान से कलमा ही पढ़ लिया है क्या? सिर्फ 5 नमाजें पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के और रोज़े रख के हम ये दूसरे वाजिबात हैं वो नहीं अदा करेंगे, बस हमें फिर ईमान की हलावत मिल गई है? वो सहाबा कराम थे मदीना मुनव्वरा, मिसालें हैं। एक घर है, आधा अपने भाई मुहाजिर को दे दिया। यहां तक भी मिसालें हैं कि एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी 2 बेगमें हैं, ये मेरा मुहाजिर ये भाई है। उस वक़्त पर्दा नहीं था, पर्दे की आयात नाज़िल होने से पहले की ये बात है। अल्लाह के रसूल 2 मेरी बेगमें, एक उनमें से जो ये पसंद करे, ये नहीं कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, ये मैं रखूँगा, दूसरी ये ले, नहीं। इन दोनों में से जिसको ये पसंद करेगा मैं तलाक दे देता हूँ, उससे ये शादी कर ले। तो फिर वो भी तो मुहाजिरीन अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता सहाबा कराम थे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मुहाजिरीन अंसार, कुरान में अल्लाह ने इनका जिक्र फरमाया। वो कहने लगे बिल्कुल नहीं, ये दोनों बेगमें आपकी बेगमें, हमारी बहनें हैं, हमें बिल्कुल ऐसी शादी नहीं चाहिए कि जिसमें आप तलाक दें और हमें पेश करें, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ऐसी कबूल नहीं करेंगे। वो कैसे सहाबा कराम थे? फरमाया अल्लाह के रसूल मेरा बाग है, आधा बाग मैं इसको दे दूंगा, आधा बाग मेरा हो गया। सहाबी है, अल्लाह के रसूल 2 घर है, एक घर मेरा हो गया, एक मेरे ये मुहाजिर भाई का हो गया। और यार ऐसी मिसालें तो लाएं। अगर आप ऐसी मिसालें लाना चाहते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, सहाबा कराम की सीरत को अपनाएं, फिर आपको फिर क्या मिलेगा? ऐसे कहेंगे कि या अल्लाह मेरे 3 घर हैं, एक मुझे काफ़ी है, 2 मैं किसी और को दे देता हूँ। और यार ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके 2-4 घर हैं, वो गरीबों को कहते हैं चलो आप हमारे घरों में रहें, हम आपसे किराया नहीं लेते। अगर किराया लेते हैं तो कम बराए नाम, ताकि ये पता लगे कि ये मालिक ना बन जाए, थोड़ा सा किराया ले। ऐसे लोग भी आते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये तो घरों की बातें कर रहा था। जब ऐसे यानी इस्लाही पहलू पर बात होती है तो बात लंबी हो जाती है। अब मैंने घरों की बात की, अब एक शहर की बात करूंगा। जब एक एक घर के सारा हमारे घरों का निज़ाम ही इंसाफ पर नहीं है, जुल्म पर है, तो पूरे शहर में जब सब जुल्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिर अल्लाह की तरफ से रहमतें कब आएंगी?
वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अगर बस्ती वाले ईमान ले आए, आसमान से रहमतें, ज़मीन से रहमतें, ये कौन भेजने वाला है? अल्लाह ज़ुल जलाल भेजने वाला है। और फिर इसी तरह देखें, हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान है, जब हम हर शहरी, हर घर वाले ही जालिम है, तो पूरे मुल्क में फिर जालिमाना निज़ाम होएगा, फिर आदिलाना कब आएगा? मेरे भाइयों, हमारी मस्जिदों में जाने की तादाद कम हो गई है, हमारी मस्जिदों से मोहब्बत कम हो गई है। जिस दिन हमारी जो जुमे की नमाज होती है ना, उसमें जितनी तादाद होती है, फजर की नमाज में उतनी तादाद हमारी हर मस्जिद में होने लग गई ना, तो फिर अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा कि ये बंदे मेरे सामने आ गए हैं। मेरे भाइयों, तौहीद और सुन्नत के बाद जो अल्लाह ज़ुल जलाल के फ़राइज़ हैं, उनको अदा करने के बाद हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। वो तो रब्बुल आलमीन है, एक गिलास पानी किसी को आपको पिला दे, अल्लाह जन्नत दे देता है। एक वो औरत जो कि बदकार है, गुनाहगार है, लोग उसको देखकर चेहरा दूसरी तरफ करते हैं, नफरत करते हैं। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह कहते हैं, जा मैंने तुझे जन्नत का वारिस बना दिया, सारी जिंदगी के सारे गुनाह मैंने तेरे माफ़ कर दिए। वो तो रब्बुल आलमीन है। हम लोगों के गुनाहों और ऐबों को देखते रह गए। अल्लाह ज़ुल जलाल अपने बंदों की नेकियों को देखता है। एक नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, सारी जिंदगी के सारे गुनाह कितने हैं? पहाड़ों के बराबर, आसमानों के बराबर, समुद्रों की छाक के बराबर। अल्लाह कहते हैं, मैंने सारे माफ़ कर दिए। एक अमल उसका अल्लाह को पसंद आ गया। मेरे भाइयों, कोई अमल तो आप लाए जो फ़राइज़ है, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है। हज उस पर जिसके पास ज़्यादा रहा है, ज़कात उसने देनी है जिसके पास निसाब है। बाकी तो रमज़ान के रोज़े और नमाज मेन तो बड़े मसाइल ये हैं। और फिर अल्लाह की तौहीद, इंसान का सर हो तो अल्लाह का दर हो, पूरी दुनिया के दरों से इंसान का सर उठ जाए और अल्लाह के सामने झुक जाए और अल्लाह ज़ुल जलाल से बंदा कहे, या अल्लाह, इबादत तेरी, तरीका तेरे मुस्तफ़ा का, अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरी तौहीद पर गुजरे, और जो तूने अपने हबीब मोहम्मद अलैहिस्सलाम को निज़ाम दिया है, शरीयत तरीके दे, इबादत के तरीके, या अल्लाह उस पर हमें चला दे। अल्लाह तेरे दर पर आगे हमें चला दे, हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। जब बंदा आजिज़ाना अल्लाह से दुआएं करेगा, अल्लाह दीन मुस्तफ़ा पर, सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह बंदे को चला देंगे। कोई भी अमल हो, कोई भी अमल हो, दुनिया का हो, दीन का हो, आखिरत का हो, इबादत हो, रसूलुल्लाह का तरीका देखें, सहाबा का अमल देखें। अगर ये देखना आपने शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान में अमन व सुकून हो जाएगा। कोई घर में, किसी घर में गुर्बत और फ़कीरी नहीं रहेगी। आप देखें, जब सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया, एक वक़्त वो भी आया, ज़कात देने वाला गलियों में आवाज़ देता है, भाई है कोई ज़कात लेने वाला? सुबह निकलता है, रात तक खाली वापस आ जाता है, कोई एक ज़कात लेने वाला नहीं है, सब देने वाले बन गए। क्यों? सीरत मुस्तफ़ा अपनाई है, और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत। मेरे भाइयों, वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, मज़मून बहुत लंबा है, लेकिन अक्सर भाई प्रोग्राम देखते हैं ना, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए ना तो वो परेशान भी हो जाते हैं। तो मेरी बेटियों से, बहनों से और भाइयों से गुजारिश है कि ये प्रोग्राम इस्लाही है, आप इसको एक बार नहीं 10 बार बार देखें, शुरू से आखिर तक देखें, मेरी एक एक बात पर गौर करके अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। फिर आप रोज़ाना डेली मेरे इस प्रोग्राम को शेयर करें फेसबुक में, और इसी तरह जो है व्हाट्सएप नंबरों में जो है ना शेयर कर दें। मेरे इस प्रोग्राम को नशर करने से अगर एक बहन को उसकी विरासत का हक मिल गया, एक मुफलस को, गरीब को, मिस्कीन को, उनको अगर लिबास मिल गया, उनके घर खाना नहीं खाना मिल गया, तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम हमारे लिए सदका जारी हो जाएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।